औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Yesterday we ended कहाँ हमने एंड किया था बताओ? When Hazrat Usama bin Zaid he came back to Medina, ठीक है ना? जी, ठीक है। And we were about to start about the false prophets, जी। ठीक है? चलो। हम्म। अच्छा, false prophet एक्चुअली हुआ ये था कि when Prophet he claimed himself as one of the prophet of Allah. So those people who had some power, influences, and they were not having this much respect, तो उन्होंने claim किया कि हम इसको कैसे हम इसको काउंटर कर सकते हैं, ठीक है? तो फॉल्स प्रॉफिट में सबसे पहले हम डिस्कस करें अल असवद अल अंसी। अल-अस्वद अल-अनसी। हाँ, अच्छा, फॉल्स प्रॉफिट तो सिंस दैट टाइम टिल नाउ बहुत सारे हैं, लेकिन दीज फॉल्स प्रॉफिट आर प्रोमिनेंट आर रिलेटिंग टू द फर्स्ट फोर कैलिफ्स, पर्टिकुलरली द कैलिफेट वाज अबू सिद्दीक रनो, ठीक है ना? इस वजह से उसको हम पढ़ते हैं कि अगर आप हिस्ट्री पे जाएँगे तो आपको पता चलेगा उस ज़माने से लेकर अब तक भी लोग, ठीक है, अभी नियर पास्ट के अंदर भी कुछ लोगों ने दावा किया था कि मैं मेहंदी हूँ, इस तरह की बातें हो रही हैं। Al Aswad Al Ansi actually he belonged to Ansi tribe of Yemen, and he was an ugly man. That's why he used to अच्छा। cover his face, and he was called as the veiled prophet. हर आदमी का अपना एक स्टाइल होता है, तो उसका स्टाइल ये था कि अपना चूंकि वो ब्लैक कॉम्प्लेक्शन था उसका, तो और अगली जी। मैन भी था, तो ही यूज्ड टू कवर his face. अब he did not want to show the people his face. His claim of magical power and significant discount in the religious obligation of Islam. देखिए, if we have been through this false prophet Aswad and Tulaiha Sajja Yas Musalama, one of the things which made people to be attracted towards them was the leniency or you can say exemption of rituals. देखिए, उन लोगों ने अगर किसी रिचुअल्स को फॉलो भी किया है which was ordered by Allah and his prophet, so they reduce the number of prayers. Like it is said by Musalama that he reduced the number of prayers from 5 to 3, and he exempted people from fasting and zakat. He allowed people to do adultery and drinking. तो ये चीज़ें भी जो है ना, इसमें लग्ज़री थी ना, इस चीज़ें ने जी। भी लोगों को अट्रैक्ट किया कि इनका इस्लाम कबूल कर लो। अब वो ज़ाहिर बात है ईमान कमज़ोर था। अब बिकॉज़ ही वाज़ हैविंग लॉट्स मोर पावर दैट्स व्हाई ही कैप्चर्ड द नजरान एंड सरा। ये 2 ऐसे प्लानर थे जो लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, एंड ही कैप्चर्ड दोज़ प्लेसेस ईज़िली। अल असवद अल अंसी, ठीक है ना? ठीक He है। was assassinated a day or two before the death of the Holy Prophet. Actually, these prophets, they claimed their prophethood during Prophet lifetime, but Prophet could not take any action against them. But one of the thing is, one of the Aswadansi, he was killed during Prophet lifetime too. यानी कि वो एक वाहिद ऐसा बंदा था जिसको होली प्रॉफिट की ज़िंदगी के अंदर कत्ल कर दिया गया, और रिमेनिंग पीपल होली प्रॉफिट के बाद उनको डेल्ट किया गया बाय हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा, ठीक है। So if we just calculate as far as see who tried his best to motivate people through him, he failed in his attempt and he was killed, one of the enemy commander, one day before the Prophet death. And the news came officially to Medina when Hazrat Abu Bakr became the first caliph. जब तो ज़माने के अंदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन इतनी फास्ट नहीं थी, it took days and weeks to take a news from a place to another place. However, they have special horses, special messengers, special riders who are expert to convey the message. लेकिन इसके बाद कई दिन लग जाते थे, ठीक है ना? ठीक है। तो जनाब ये तो उसका हो गया पहले कहानी। तुलैहा बिन खुवैलिद laid a claim among Banu Ghatafan and asad of receiving revelation and prophethood during the prophet lifetime. इसने भी तुलैहा ने यानी कि असद अंसी की तरह तुलैहा ने भी he claimed his prophethood from the prophet lifetime. And his claim to prophethood was that he had been lost in desert. अच्छा, इसके claim इस तरह से भी हुआ कि one of the thing which is make prophet messengers indifferent to other people was miracles. So it is narrated कि एक इस miracle ऐसे भी उसके साथ ये हो गया कि once he was going somewhere with his tribe and suddenly they lost in desert, and when they lost in desert they could not find the water, and this situation when they were very near to die, suddenly somehow he found a water spring of water, and when he found that, he claimed that this is my miracle, that there was no sign of water. इस पूरे स्थान में there was no sign of water, कोई पानी का नामो निशान ही नहीं था.
लेकिन देखो मेरी वजह से ये हमें पानी मिल गया। तब जब उन्होंने ये देखा कि यार ये तो बात बिल्कुल सही कह रहा है, तो उसके इस क्लेम की वजह से भी लोग ज़्यादा मोटिवेट हुए। यानी कि आपने देखा होगा ना हमारे इस दौर के अंदर भी कुछ लोग जो थोड़ा मैजिक दिखा देते हैं, जो बाबा बाबा टाइप की चीज़ होते हैं, ताबीज़ गुंडे करने वाले, अगर वो कुछ जी। दिखा दे, कुछ जिन्नात को हाज़िर कर दें या कुछ चीज़ खुद ब खुद हिलती है तो बोलते हैं यार ये तो बहुत पहुँचा हुआ बाबा है। तो इसी तरह वो बस उसका लगता। He also decreased Muslim way of praying। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि they did not totally deny any rituals, यानी कि वो किसी ने ऐसा नहीं किया कि जनाब उन्होंने बोला बस ईमान ले और कहानी खत्म। They had to give their followers some sort of way of life, how to live on earth, and some sort of worships. So what they did, that they either reduced the prayers or they changed the method, and they used to perform salat. What salat they were performing at that time while they were standing? Okay. ठीक है। The followers of Talha proclaimed that no sword could harm him. ये भी एक बात ज़माने में मशहूर कर दी गई थी। It is said कि he was attacked by one of his enemy and he was not killed. He was wounded but he survived. अब वो भी इसको एज अ मिरेकल उन्होंने काउंट किया जनाब कि इसके ऊपर कोई तलवार असर नहीं कर सकती, ये इमोर्टल है। Khalid bin Walid, he was appointed as Siddiq and he defeated him at the place of Buzaka। ठीक है, मजाक कर, ठीक है। बुज़ाका में। ये जितने चीज़ आपके पास, हाँ, आप जब वो कंपाइल नोट्स को पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें जो टिपिकल वर्ड्स हैं या डेट्स हैं, उसको आप क्या करेंगे, पेन से, वो तो चीज़ आपकी हो गई ना, उसको ख़राब कर दो। पेन से या हाइलाइटर से ना उसको हाइलाइट कर दो कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसको मुझे करनी है। बाकी अपने अल्फाज में आप एज़ ए स्टोरी लिख सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उसको तो लिखना पड़ेगा। जैसे बुज़ाका हो गया, तुलैहा हो गया, सतनसी हो गया, बनु तमीम ट्राइब हो गया वगैरह। सो व्हेन ही वाज़ अटैक्ड बाय द खालिद बिन वलीद, ही कुड नॉट रेजिस्ट एंड ही एस्केप्ड टू सीरिया। उसकी आर्मी में लड़ा लेकिन वो वहां से भाग गया। लेटर व्हेन सीरिया वाज कैप्चर्ड बाय मुस्लिम, ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम। देखिए पहले जो था अस्वद अंसी, ही वाज किल्ड व्हाइल ही वाज स्टिल अ काफिर, एंड तुलैहा he claimed himself as Messenger of Allah, but later he accepted Islam. And when he accepted Islam, it is said he became a true believer and he fought with Muslim against the non-Muslim. And the particular battle which was mentioned in history was like Battle of Qadisiyah, Nahwan, and Jalula. This can be one of the sign that his faith was true। देखिए एक बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूँ। कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि जनाब बहुत सारे सहाबा ऐसे थे जो मौत के खौफ से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो ये असल में गलत क्लेम है। तो अच्छा। इस्लाम और फेथ कैन नॉट बी मेजर। हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है, कोई ऐसी मशीन नहीं जिसके अंदर ये कहे कि सच्चा ईमान है, झूठा ईमान है। हाँ, एक ही चीज़ हमारे पास जो बात नज़र आती है वो ये कि आफ्टर बिकमिंग मुस्लिम, व्हाट वर देयर एक्शंस, हाउ डिड दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू फॉलो द प्रॉफिट्स कमांड। ठीक है ना? तो अब ये कहना कि तुलैहा ने इस्लाम तो कबूल कर लेते नहीं, उसके ये एक्शन कि ही टुक हिज लाइफ एट रिस्क, ही फॉट अगेंस्ट एनी इस्लाम एंड ही फॉलोड द कमांडर ऑफ दैट टाइम, हज़रत उमर जो भी थे। तो ये उसकी बात खासियत थी कि वाकई थी वो ट्रू मुस्लिम था। अच्छा, ठीक ठीक है, है। तो पहला क्या हो गया, अस्वद अंसी। पहले दुल्हा मतलब दुल्हा बाद में मतलब इस्लाम में आ गया था। हाँ, एक वे। एग्जैक्टली। ठीक है ना? अब वो भले से कैसे भी आया हो, जब वो सीरिया भाग गया बुज़ाका से, हो सकता है उसने सोचा मैं सेफ हो, लेकिन सीरिया भी कैप्चर हो गया, तो फिर उसने इस्लाम कबूल, मस्जिद भाग निकल। इसके बाद अगर इस्लाम उसने कबूल कर लिया तो अब हमारे पास कोई लीगली, एथिकली, रिलीजियसली कोई राइट ही नहीं है हम किसी को काफिर कह सकते। ये एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट आपको बता रहा हूँ, मैं सेंसिटिव बात बता रहा हूँ। वजह इसकी क्या, ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो कहते हैं कि बाद साहबा कराम ने इस्लाम कबूल किया आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। जैसे अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू सुफियान, ही वाज द बिगेस्ट एनिमी बिफोर दैट, लेकिन एट द टाइम ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का ही एक्सेप्टेड इस्लाम। तो कुछ लोग जो क्लेम करते हैं कि उसका इस्लाम सच्चा इस्लाम नहीं था, हालांकि दैट्स रॉन्ग। तो ये पॉइंट को आपको समझना है। अच्छा, ठीक ठीक है, है। आपने क्वेश्चन किया तो अब मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा और एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मिसाल के एक बार बताऊं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ वॉर गोइंग ऑन एंड मुस्लिम दे वर फाइटिंग अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स सम प्लेस ड्यूरिंग प्रॉफिट लाइफ टाइम। अब क्या हुआ कि व्हेन दे वर हैविंग द जनरल फाइटिंग, तो वन ऑफ द साहबी, ही वाज फाइटिंग अगेंस्ट द नॉन मुस्लिम, ही वाज अ स्ट्रांग वॉरियर, एंड आफ्टर a lot of effort, finally Muslim they conquered, they climb on his chest, and he was in this condition to kill him easily। ठीक है, लड़ते लड़ते लड़ते, आप तक कभी देखा, आप तक कभी देखे थे कि मूवी देखी है ट्रॉय, ग्लैडिएटर, 300,
ठीक है, इस तरह की वॉर मूवी पुरानी नहीं। शॉर्ट फाइटिंग मूवी देखना, बहुत पुराने जमाने के, रोमन्स के जमाने के है, ग्रीक के जमाने के। अच्छा। तो बहरहाल व्हेन ही वाज ऑन हिज चेस्ट, वो थक गया। अब व्हेन ही वाज अबाउट टू किल हिम, जो उसको कत्ल करने वाला था, तो उसने क्या किया, नॉन मुस्लिम हु आर ऑन द ग्राउंड, ही सेड आई एक्सेप्ट दम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिया उसने। अच्छा। तो इवन देन दैट साहबी किल दैट पर्सन, इसके बावजूद साहबी ने उसको कत्ल कर दिया। व्हेन वॉर वाज ओवर, तो जब वॉर खत्म हो जाती है, कोई एक्सपीडिशन कंप्लीट हो जाता है, तो होली प्रसंग की एक सुन्नत ये थी कि वो सहाबागण से पूछते थे कि भाई ये बताओ क्या हुआ, क्या, इसको कहते हैं कारगुजारी, एफर्ट, समरी के लिए आप पूछते थे, बताओ क्या हुआ क्या। तो उस जब सब उनसे कंसल्ट किया कि व्हाट हैपेंड विद यू, तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, उस साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, ड्यूरिंग दिस वॉर दिस हैपेंड टू मी, ऐसा 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 हुआ। तो व्हेन ही सेड ला इलाहा इल्लल्लाह इवन देन आई किल हिम, तो होली प्रॉफेट ने कहा कि व्हाई डिड यू किल हिम व्हेन ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम, तुमने उसको कत्ल क्यों किया जिसने कहा। तो उसने कहा, साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, ही क्लेम ही रिसाइटेड कलमा ड्यू टू द फियर ऑफ डेथ, वो तो मौत के खौफ से उसने कलमा पढ़ा। होली प्रॉफेट ने कहा कि डिड यू कट हिज चेस्ट, did you cut his heart and see whether he recited his kalma with true heart or with bad heart, उसने कहा यार सर ये तो मैंने नहीं किया। तो उन लोग से हम नाराज हो गए। अच्छा। इस तरह की बात आती है, अल्लाह को माफ करे। ये हुल को डिड नॉट लाइक दिस। तो ये क्लेम कोई करना जनाब ऐसा था, ये असल में बेदनीति के बारे में बहरहाल असवद अनसी एंड तुलैहा, दे वर द टू among four very popular false prophet. Next is Sajah bint al-Haris, belonged to Bani Tamim tribe. She was the lady who claimed to be prophetess, was beautiful, professed in predicting future, was a poet, and mostly talked in verses. She was a very beautiful lady, and she was having very much, you can say, instinct or wisdom to predict. जैसे होता है फोरकास्ट बनाने, फॉर्चून टेलर जो होते हैं, जी जी फॉर्चून टेलर जो होते हैं वो तो किसी हिसाब किताब से को बताते हैं, कभी तुक्का लग जाता है, कभी तुक्का भी नहीं लगता। जी। दिस इज एग्जैक्टली। ऑल्सो ब्रांच ऑफ नॉलेज, ये भी एक नॉलेज है, पता है आपको। पामिस्ट्री, पामिस्ट्री समझते हो? क्या? पामिस्ट्री, पामिस्ट्री जो हाथ की लकीरें देख के फोरकास्ट करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं आजकल आहिस्ता करके, ओह अच्छा। ओह। जो स्टार्स लाइक। के जरिए एल्गोरिथम से बताते हैं। तो वो एक किसी का नॉलेज होती है, एक फन है वो। जी जी ठीक है, उसमें 100% परफेक्शन नहीं होती, लेकिन कभी 90%, कभी 80%, कभी 70%, 50% तुक्का लग ही जाता है। जी। तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि यार ये तो फॉर्चून टेलर हाथ से बता दिया सर। तो व्हेन शी यूज्ड टू क्लेम एंड व्हेन शी यूज्ड टू टेल द सीक्रेट ऑफ फ्यूचर, तो लोगों ने कहा यार ये तो सच बता रही है, शायद ये सही बात है। अच्छा, शी यूज्ड टू टॉक टू द पीपल इन अ काइंड ऑफ पोएट्री। शी वाज वेरी मच, यू कैन से, अ वुमन हु कैन स्पीक वेरी एलोक्वेंस लैंग्वेज। तो ये भी इंसान को मुतासिर करता है, इसकी बड़ी ज़बान ज़बरदस्त, बहुत अच्छी तरीके से बातें कर रहा है। जैसे आपको मिसाल दूँ, क्या मिसाल दूँ, जैसे आपने मुफ्ती तारिक मसूद को सुना है? नहीं सुना होगा, मुफ्ती तारिक मसूद को नहीं सुना। किसी आलिम का नाम बताओ जो तो कभी आपने कभी सुना, इमाम साहब के अलावा, आपके मस्जिद के इमाम साहब के अलावा किसी आलिम का आपने सुना है? यूट्यूब में, फेसबुक में, कहीं पर भी नहीं सुना हो? सर एक सेकंड। सॉरी सर, जी आप जी बोलिए। जैसे अच्छा, तुम्हें तारिक जमील का नाम सुना, मौलाना तारिक जमील का नाम? जी शायद फेसबुक पे वो आए थे। हाँ, तो वो उस स्टाइल में बात करती थी ना कि लोग बड़े इम्प्रेस हो गए। अच्छा। ठीक है, ड्यू टू हर फेम एंड अपीलिंग पर्सनैलिटी मैनी एक्सेप्टेड हर क्लेम। ये कि शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, she belonged to Banu Tamim tribe, very eloquence, having lots of fortune telling, and about her personality people were impressed। तो उस वजह से भी लोग उसको उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। देखिए हमारे माशरे के अंदर भी ऐसा होता है बज़ाहिर, शायद आपको पता होगा कि हम किसी आदमी को देखें, उस आदमी की बहुत खूबसूरत सा आदमी है, गोरा लाल हो रहा है और टोपी दाढ़ी पहनी हुई, बड़ा नूरानी चेहरा है, तो हम लोग कहते हैं बड़ा नेक आदमी होगा। जी एग्जैक्टली। हो सकता है अंदर से वो पूरा अंग्रेजी हो, क्रिश्चियनी हो। ये भी होता है सर, यही ठीक है, होता है। हाँ। तो इस तरह से लोग इंस्पायर हो जाते हैं ना, बड़ी खूबसूरत खातून थी, तो लोग कह रहे हैं यार इतना वो मासूम चेहरा, ये सच बोल रही होगी। अच्छा, अब क्या हुआ कि उस जमाने में जितने भी फॉल्स प्रॉफिट ना, दे नो ईच अदर,
अच्छा। सबको पता था कि जैसे सिर्फ मैं नहीं बल्कि फलाना फलाना नबी, असवद अंसी ने, तुलैहा ने, सज्जा ने, मुसलमा, अच्छा सब ने ये अच्छा क्लेम किया हुआ। तो ये एक दूसरे को जानते थे, लेकिन सबको पता था कि भाई वो तो हो ना हो, लेकिन मैं तो झूठ बोल रही हूँ, हो सकता है वो सच्चा हो। ठीक है। तो अच्छा क्या हुआ कि व्हेन शी गेन सम पावर, she decided to attack Medina, but learning she was intending to attack Medina and capture Medina. And when she was about to come to Medina, she got this news that Khalid bin Walid, he has defeated Tuleha in Buzaka, and even Tuleha he ran away from Buzaka to Syria. तो अच्छा शी रियलाइज कि यार इस वक्त मुसलमानों की आर्मी बहुत स्ट्रांग है, तुलेहा भी उससे फाइट नहीं कर पाया, तो इस वक्त मेरे डेंजर। एक तो एक कि तुलेहा उनके अपने खालिद बिन वलीद जो है वो तुलेहा के मकाम पे जाके बुजाका में वहां पे वॉर की, और तुलेहा कुड नॉट रेजिस्ट। बात समझ अच्छा। आ रही है? तो हाउ फिर कैन तो आई बोलो। तो शी वाज आफ्टर लाइक वो तलहा के डिफीट के बाद आई थी अटैक पे। हम्म। हाँ, अच्छा यानी कि शी इंटेंडेड टू अटैक मदीना, लेकिन वो जब उसको पता चला, अच्छा तुलेहा ने मदीना में अटैक नहीं किया था, याद रखिएगा, अभी हमने पिछली साइड में पढ़ा है। तुलेहा के ऊपर अटैक किया मुसलमानों ने। हजरत अबू सिद्दीक नो as a Khalifa, he appointed Khalid bin Walid to go to Wuzaka, go to Tulayha and kill him, defeat him. So Hazrat Khalid bin Walid, he reached to Wuzaka, and there was a war. In that war, Tulayha he ran away to Syria. तो जब ये न्यूज़ मदीने में भी हर तरफ फैली, तो सजा को पता चला कि यार मैं तो ये चाह रही थी क्या अटैक ऑन मदीना, लेकिन ये तो मदीने के लोग जाके वहां पे जाकर अटैक करें, तो इसका मतलब है कि इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अटैक ऑन मदीना एंड कैप्चर द कैपिटल इस्लामिक स्टेट। बात समझ आ रही है? अच्छा ठीक है। क्योंकि सो शी यूजुअली जो, वाज एक्चुअली स्मार्ट। यस। हाँ यूजुअली जो कैपिटल्स होता है वो स्ट्रांग होता है ना। जी आपने किसी मुल्क के कैपिटल में कब्जा कर लिया तो सिंबॉलिकली आपने पूरे मुल्क को कब्जा कर लिया, ऐसे होता है ना। जी तो एग्जैक्टली। उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। जब उसने अपना अच्छा माइंड चेंज कर लिया, तो बहरहाल उसको अब कुछ ना कुछ तो करना था। तो व्हाट शी डिड, शी कलेक्टेड एन आर्मी ऑफ हर फॉलोअर्स एंड प्रोसीड टू यमामा टू फाइट अगेंस्ट मुसैलमा। यानी कि उनके लोगों को पता था कि जब ये जो खातून है, शी क्लेम दैट आई एम द फर्स्ट प्रॉफिटीज। उनके ये थे कि अल्लाह डिड नॉट मेक एनी वुमन एज अ प्रॉफिट, आई एम द ओनली वन एंड ओनली वुमन हु हैव बीन गिवन दिस ऑनर बाय अल्लाह टू कॉल हिज प्रॉफिटीज। ये भी क्लेम कर रहे थे वो। अच्छा तो लोगों ने उनको फॉलो किया, और फॉलो करने वाले लोगों ने सोचा कि भाई ठीक है। तो शी कलेक्टेड एन आर्मी, अपना माइंड चेंज किया उसने कि भाई ठीक है, मैं मदीने में तो टेक्निक लाइट आ गई हमारी तरफ। उसने कहा मैं अच्छा मदीने पे अटैक नहीं कर सकती, लेकिन somehow मैं कम से कम जाके मुसलमा से जाके वॉर करूं। अच्छा ठीक। एंड मुसलमा कज़ाब वाज वन ऑफ द वे, दे वर गुड लुकिंग, सो दे वर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। अब हुआ ये, इट इज सेड इन हिस्ट्री, ये चीजें आपको पता है हिस्ट्री में मिलेगी तारीख तिबरी जिबरी में, कि व्हेन द बोथ आर्मी ऑफ सज्जा एंड मुसलमान कज़ाब दे इनकैम्प्ड फेस टू फेस, जब बोथ आर्मी फेस टू फेस इनकैम्प्ड हो गए अटैक के लिए, वॉर के लिए, तो बिफोर हैविंग अ single combat or general fighting, so and so, they decided, both of them, Musalama Kazab and Saja, to meet one on one, to have a one on one meeting to decide the future of our people. अच्छा ठीक है। ठीक। अब ये हुआ कि जब when they met to each other, आर्मी बोथ साइड में खड़ी हुई है। आपने देखा अर्तुगरुल, देखा अर्तुगरुल? कैसे? अर्तुगरुल देखे? अर्तुगरुल सीरीज आती थी टर्की की टीवी में, अर्तुगरुल अच्छा ड्रामा। जी। जी ड्रामा। अच्छा ड्रामा। हम्म। टर्किश ड्रामा था ना, बहुत मशहूर था अर्तुगरुल। अच्छा मेरी शायद बहन ने देखा था अच्छा। वो। हाँ। तो ऐसा हुआ कि जब आर्मी फेस टू फेस थी, तो वो मिले ना उस कैंप के अंदर। तो जब व्हेन शी वेंट टू मुसैलमा, तो वो तो बहुत खूबसूरत खातून थी, और मुसैलमा झूठा आदमी था। तो वो बड़ा से वो ही फेल इन लव विद हर। अच्छा अब उसने दोनों ने झूठी झूठी बातें, ये कि हिस्ट्री में मैंने डबल मास्टर किया ना, मैंने हिस्ट्री के अंदर मास्टर्स किया हुआ है। तो उसके अंदर हिस्ट्री के अंदर ये भी कि दोनों ने अपनी तरफ से उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी, एंड दे ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर, एंड दे ट्राई टू इम्प्रेस ईच अदर। तो फाइनली दे रीच एट दैट कंक्लूजन कि भाई हम लोग शादी कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, सज्जा की आर्मी, दे वर thinking that Sajja is against Musaylama because she believed that Musaylama is not a true prophet, or if Musaylama is true prophet, that he should accept Sajja हेलो।
करती या उसको कन्विंस करती तो शादी कर लें लोगों ने। हेलो हेलो हेलो। हेलो, अब आवाज आ रही होगी। जी आ रही है। असल में वो इलेक्ट्रिसिटी आ गई ना। जी जी। तो मैं ये बता रहा था कि एक मिनट। तो सज्जास आर्मी, they were expecting कि we would have a war when they found कि सज्जद शादी कर ले तो वो समझे कि शी इज अ लायर, झूठ बोल रही है, ये कोई अल्लाह के वो पैगंबर नहीं है। एंड अ बिग पार्ट ऑफ सज्जाद आर्मी दे लेफ्ट हर। अच्छा। ठीक है, चलेगा वापस। लेकिन रिमेनिंग आर्मी सज्जा की थी, दे केम विद मुसलमान कज़ाब आर्मी। एक तो मुसलमान कज़ाब की अपनी बिग आर्मी थी, और जब सज्जा मुसलमान की शादी हो गई एंड द रिमेनिंग आर्मी ऑफ सज्जा दे केम विद मुसलमा, मुसलमा बिकेम द बिग आर्मी। ठीक है जनाब। ठीक है। अब जनाब ये क्या होता है कि Saurabh Sajja went back to Iraq frustrated considering that she lost without a battle. According to some reports, her army was defeated by Khalid bin Walid. जैसे Khalid bin Walid, because his title was Saifullah. सैफुल। खालिद सैफुल्ला, याद रखिएगा। ये खालिद खालिद bin Walid की जो बायोग्राफी आती है ना, क्वेश्चन नंबर 5 पेपर नंबर 1, तो आप जैसे हमने पढ़ा था ना, हाउ टू राइट अकाउंट, हाउ जी। टू राइट अकाउंट, उसके अंदर टाइटल भी लिखते हैं। तो हज़रत खालिद का टाइटल है सैफ, सैफ कहते हैं वो सॉर्ड को, सैफुल्ला द सॉर्ड ऑफ अल्लाह। So as सौरभ। Khalid Walid, he had lots of arrows. It is said that there is no part of his body which has no sign of wounds. पूरी बॉडी में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर उनको जख्म ना लगे हो ड्यूरिंग वॉर। ठीक अच्छा। है ना। बट ही हैड अ नेचुरल डेथ ऑन हिज बेड, एंड बिफोर हिज डेथ ही सेड कि लेट एवरीवन नो द कावर्ड पीपल, मेरी ये पैगाम उन बुज़दिलों को पहुंचा दो कि इफ द डेथ कम्स अंडर द शेडो ऑफ द sword, खालिद डू नॉट डाई लाइक दिस। अगर तलवार से मौत आती तो मैं इस वक्त यहाँ नहीं मर रहा होता, सबको बता दो बुजुर्गों को। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि आई रियलाइज दैट आई विल नॉट डाई इन वॉर। तो उनसे पूछा कैसे, उन्होंने कहा व्हेन द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह ही गेव द टाइटल ऑफ सैफुल्लाह, जब प्रॉफिट ने मुझे सैफुल्लाह का टाइटल दिया अल्लाह के ताला, तो उसी वक्त समझ गया कि तलवार, अल्लाह की तलवार कभी नहीं टूटेगी, मुझे कभी मौत नहीं आएगी वॉर में। अच्छा। हाँ जी। तो व्हेन सज्जा uh, somehow she was defeated. It said that Sija was already married and she surrendered to Muslim under some hyponic, अच्छा एम्प्लॉय ये भी है, ये भी आता है कि जनाब उसको कुछ जो है ना hypnotize करना आता था मुसलमा को। hypnotism समझते हो ना, hypnotism, जी जी हिप्नोटिज्म जी। उससे वो कर देते, मैजिक करते। तो बहरहाल when the spell was over she realized that she had regarded herself and lost the battle. She went back to Iraq and later embraced Islam. अच्छा अब क्या हुआ कि when they got married, जब शादी हो गई उसके बाद जब वो रियलाइज कर, जब उसने देखा कि मेरे लोग ने मुझे साथ छोड़ दिया और उसको somehow she expected भाई मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया, फिर उसका बताया तो उसने मसला में छोड़ दिया होगा। इट सेड कि शी वेंट बैक टू इराक एंड लेटर इन इस्लाम, वो वापस इराक चली गई, बट शी डिड नॉट लेफ्ट हर क्लेम टू बी अ प्रॉफिटीज। वो वीक तो हो गई थी लेकिन उसने क्लेम नहीं छोड़ा था, क्योंकि शी वाज स्टिल इन टाइप ऑफ कनेक्शन विद द मुसलमा। अच्छा। लेकिन व्हेन इराक वाज कैपिटल मुस्लिम इन फ्यूचर शी एम्ब्रेस्ड इस्लाम। जैसे कि तुलहा ने इस्लाम कबूल कर लिया था व्हेन सीरिया वाज कैप्चर्ड बाय मुस्लिम, सिमिलरली व्हेन इराक वाज कैप्चर्ड बाय मुस्लिम, इवन सज्जा शी आल्सो एम्ब्रेस्ड इस्लाम, शी एक्सेप्ट इस्लाम। अच्छा ठीक। ठीक है ना। तो जो चार में से तीन हमने अब तक क्या पढ़े, तुलहा, सॉरी असवद अंसी, तुलहा एंड सज्जा बिनते हारिस। उस वजह से तो लगा हो सकता है। ठीक है। ठीक है ना। तुलहा, असवद अंसी पहले, तुलहा और सज्जा बिनते हारिस। इसमें जो सबसे पहले था अल असवद अल अंसी, ही वाज किल्ड, and Tulaya and Sajja later she embraced now. They embraced now. ठीक है। The last one, it was the most dangerous, is called Musaylama al-Kazzab. Belonged to Hanifa tribe in Yamama. Most dangerous one. Visited Medina during the Prophet's lifetime and met him. He demanded the Prophet to appoint him as a leader. On his return to Yamama, he claimed to be a prophet. Also composed some verses and called them the revelation. Lessons the number of prayer काम कर दिया उन्होंने। अच्छा इसके बारे में मशहूर ये है कि व्हेन ही वाज इन यमामा he came to Medina during Prophet lifetime and he saw Prophet in a way that people they were respecting him a lot. अच्छा। So he thought कि यार ये तो क्या किया जाए, बहरहाल
दे केम टू मदीना टू embrace इस्लाम। जैसे कोई नया इमर्जिंग पावर होती है तो लोग आते हैं ना उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए या उनसे दोस्त बनाने के लिए। तो जब वहाँ पर वो आए तो उन्होंने जो होली प्रॉफिट ने इस्लाम को पेश किया, इस्लाम चीज़ ये है, तो उन्होंने ये मुसैलमा ने ये रिक्वेस्ट की, ये डिमांड की कि भाई ठीक है, आई विल एक्सेप्ट इस्लाम, बट मेक मी द लीडर ऑफ माय ओन ट्राइब। यानी कि ये जो है ना सीट की जो नशा होता है, पोस्ट का, ये इंसान को बहुत बड़े-बड़े गलत काम करा देती है। आपके सामने है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सियासत पता है ना, पॉलिटिक्स। जी जी। कोई एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन जाए तो सोचता है मैं मर के ही निकलूँ, कभी रिटायर ना हूँ। कोई चीफ ऑफ मिनिस्टर बन जाता है कहता है भाई मैं सादम मर रहा हूँ। तो ही रिक्वेस्टेड, तो होली प्रॉफिट ने उसको नहीं बनाया, बिकॉज़ ही वाज़ हैविंग दिस आइडिया कि ही इज़ अ गुड पर्सन। So when his this request was rejected by the Prophet, he came back to Yamama and he started claiming that Allah made me one of the messenger, as Allah made Muhammad the messenger. So he was And he basically jealous of Prophet Muhammad. jealous of the reputation and the love of people towards Prophet. अच्छा, ही कंपोज some verses, यानी कि झूठी-झूठी, जिसे कहते हैं ना, झूठी अहादीस हमने पढ़ी ना, जी जी सैफ हदीस हमने पढ़ी, सही-सही हफ़ीज़ मज़मून मौज़ू, जी सैफ हदीस पढ़ी है ना, सनद जी। रूल्स। तो इसने खुद ब खुद कंपोज किया है कुछ चीज़ों का, जनाब ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह की तरफ से आई है। अच्छा जी। अच्छा, टू अट्रैक्ट पीपल towards him, what he did, he lessened the number of prayers from 5 to 3 and revealed for people from zakat and allowed adultery and drinking, यानी कि जो चीज़ें इस्लाम के अंदर हराम थी वो उसने जायज़ करार दे दी कि इट हैज़ राइट, अल्लाह हैज़ गिवन अच्छा। ऑर्डर टू इट्स परमिसिबल। And when the Prophet, he asked him to surrender and accept Islam and left his this claim. So instead of following the instructions of the Prophet, he himself, what he did, he wrote a letter to Medina. He wrote a letter to the Holy Prophet and he said, Muhammad, listen, as Allah made you messenger, Allah also appointed me as one of the messenger. And I'm asking you as the messenger of Allah that divide Arabia into half, one half is for you and one half is for me. अच्छा। क्योंकि उसके पास इतनी पावर आ गई कि उसने ये क्लेम भी करना शुरू कर दिया। अब चूंकि मुसैलमा, he already visited Medina, Prophet he had seen him, he had met him, and Prophet he listened when he heard that he's demanding Prophet like this way. तो Prophet ने कहा कि because you are claiming something, you are lying on behalf of Allah, that is you are kazzab, and he got the title of kazzab, मुसलमा कज़्ज़ाब। अल kazzab। तो कज़्ज़ाब का मतलब क्या है? बिगर हाँ, लायर। देखो, कज़्ज़ाब का मतलब होता है द बिगेस्ट लायर। द बिगेस्ट लायर। अच्छा ठीक है। कज़्ज़ाब का वर्ड निकला है काज़िब से। काज़िब। ठीक है। काज़िब का मतलब होता है अ लायर। कज़्ज़ाब का मतलब द बिगेस्ट लायर। इस ये वर्ड निकला है काज़िब से। काज़िब मतलब होता है अ लायर, और काज़िब का वर्ड निकला है कज़्ब से। कज़्ब मीन्स अ लाई, एक झूठ। कज़्ब अ लाई, काज़िब लायर, कज़्ज़ाब द बिगेस्ट लायर। द बिगेस्ट लायर। ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट ने कहा कि देखो, एक तो लाई होता है कि मैं आपके बिहाफ पे कह दूं, और एक है कि आप अल्लाह के बिहाफ पे कह, तो बहुत ही बड़ा गुनाह है ना। जी। तो इसलिए he got the title, since then he was get this title Muslim al-Kazzab. After the death of the prophet, people preferred him as a living prophet. अब ये हुआ कि when Prophet he could not take any action against him and Prophet he passed away, Musailam al-Kazzab, he started claiming people, letting people know that Allah made two prophets. Muhammad and I was the prophet of Allah. So now Muhammad has been passed away, Muhammad has gone, and I'm still alive. So tell me, who is better, a living prophet or a dead prophet? तो लोगों ने भाई लिविंग प्रॉफिट की ज़्यादा वैल्यू होगी। दैट इज़ द रीज़न दैट पीपल दे आल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम। बात समझ आ रही है? जी। लोग कहते हैं भाई ज़िंदा पीर है, ज़िंदा पीर। एक तो लोग पीर साहब मानते हैं और पीरों को बहुत सारा लोग मानते भी हैं, और किसी के पीर साहब ज़िंदा तो बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत करते हैं। बहुत सारे लोग पीर का इंतकाल होता है तो वहाँ मज़ार पे जाके उनके लिए दुआ भी पढ़ते हैं। तो व्हेन ही बिकेम स्ट्रॉन्गर, हज़रत अबू सिद्दीक़ ही सेंट 2 आर्मीज़ अंडर अकरम बिन जहल एंड शरबिल हसन विद इंस्ट्रक्शंस। अब जनाब ये हुआ कि ही बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग, तो हज़रत अबू सिद्दीक, बिकॉज ही हैड टू डील विद दिस फॉल्स प्रॉफिट, ही सेंट 2 आर्मीज, इकरम बिन अबू जहल सन, अबू जहल को तो जानते हो ना, जी जी बाप कितना बड़ा काफिर था बेटा, इतने बड़े सहाबी, जी। और शबिल बिन हसन, और उन्होंने सेक्शन ये दी बोथ आर्मी को, दे द बोथ आर्मी वाज फाइटिंग टुवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शंस। ही आस्क्ड देम टू फर्स्ट रीच टू यमामा। यमामा वाज द कैपिटल ऑफ मुसैलमा, वहां पहुंचो, एंड हु
So ever will come first, he will wait for the next army. अगर शुरबिल पहले पहुंचे तो he should wait for इकरामा बिन अबू जहल, और इकरामा बिन अबू जहल पहले पहुंच जाए यमामा में तो he should wait for the शुरबिल, and both army will collectively fight against मुसैलमा. अच्छा, तो असल में इतना मतलब पावरफुल हो इतना गया। पावरफुल था. अच्छा। अब हिस्ट्री सेज ये कहती है कि व्हेन अकरमा बिन अबू जहल ही रीच फर्स्ट, या तो अकरमा पहले पहुंच गया या शुरबिल पहले पहुंच गया. And when he reached to the place, he did not wait for the next army. So they could not follow instructions given to him by the leader. तो हम लोग जो हदीस नंबर 1 पढ़ी है ना कि वी शुड फॉलो लीडर ऑफ द कम्युनिटी. जी। तो अब एक्चुअली उनको वेट करना चाहिए था, बट ही डिड नॉट वेट एंड ही अटैक ऑन द मुसलमा, एंड ड्यू टू द पावर मुसलमा दे गॉट डिफीटेड, शिकस्त हो गई. ठीक है। द नेक्स्ट आर्मी व्हेन दे रीच्ड टू यमामा दे फाउंड कि भाई जो प्रीवियस आर्मी थी, दे डिड नॉट वेट फॉर अस, उन्होंने हमारा इंतजार नहीं किया और अटैक कर दिया, और उनको तो शिकस्त हो गई. अब जो नई आर्मी आई थी उनका काम ये था ना कि वो दे कैन रिपोर्ट टू द खलीफा कि भाई खलीफा ऐसा ऐसा हो गया, अब क्या करें. तो नेक्स्ट जो आर्मी पहुंची है तो शुरबिल के खिलाफ, उन्होंने कहा ठीक है आप तो नहीं, अब हम लड़ लेंगे. एंड नाउ द नेक्स्ट आर्मी दे बाय देमसेल्फ दे फॉट अगेंस्ट मुसलमा एंड दे आल्सो गॉट डिफीटेड. समझ में आ रहा है? अच्छा, यानी कि अगर दोनों उनको भी हरा दिया। उनको भी हरा रहे, क्योंकि अगर दोनों एक साथ लड़ते तो पावर ज्यादा होती, उन दोनों अलग अलग लड़ा, जी। दोनों को फाइट कर दी. दिस न्यूज केम टू मदीना. When this news came to Medina, Hazrat Siddiq Anhu, as a leader of the community, what he said? He sent Khalid bin Walid, and they sent by a caliph with an army of 15,000 men. अब 15। हजरत खालिद वलीद को उन्होंने भेजा कि ठीक है भाई, किरमा ने और शेरबेल ने तो मेरी बात नहीं मानी, दे गॉट डिफीटेड, नाउ यू कैन प्रोसीड टू यमामा एंड फाइट with them against Musaylama. And it is said in history that he had 15,000 army men. On the other hand, Musaylama, he has 40,000 men. So there is no comparison. Even less than 50% Muslim army थी. अच्छा। ठीक है. अच्छा, इस्लाम में होता है कि हमारा जिहाद का टॉपिक होगा, हम ये पढ़ते हैं कि इस्लाम के अंदर जब जिहाद होती है, वेजिंग वॉर होती है, तो ऐसे नहीं होता कि अचानक अटैक कर दिया. देखिए, मुस्लिम दे डू जिहाद नॉट फॉर द सेक ऑफ मनी, not for the sake of wealth or territory. They do jihad for the sake of Allah. जी। That's why they don't want to kill them. They don't want to be killed, but they first offer them Islam. If they don't know Islam, then they offer them to become partner. And if they don't, then the third option is to fight. उसके भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है कि कैसे फाइट करना है. पहले अजानें देनी है और फिर अटैक नहीं करना, सब सारी चीज़ें. बहरहाल अब हज़रत खालिद बिन वलीद, तो अब ये क्या, जब ये यहाँ पर आ गया ना तो मुसलमा ने क्या किया, मुसलमा ही ट्राइड टू ब्राइब हज़रत खालिद बिन वलीद. अच्छा। हाँ, ये कि वो खुद उसको खौफ तो था, उसको पता मैं नबी तो हूँ नहीं, झूठ बोल रहा हूँ. झूठा आदमी तो बुज़दिल होता है, ईमानदारी में सच्चा होता है, वो बहादुर होता है. तो उसने सोचा यार मैं दो को डिफीट दे रही, लेकिन ये बड़ा खतरनाक आदमी, इसके पास बहुत पावर है, इस बहुत मशहूर भी है, तो उसको मैं तो ट्रैप करूँ. तो ही ट्राई टू ब्राइब हिम, ट्राई टू कन्विंस कि भाई ठीक है पैसे दूंगे. हज़रत खालिद ने रिफ्यूज द ऑल एंड व्हाट ही स्टार्ट प्रिपेयरिंग द बैटल. ठीक है। बात सुन आ रही है? जी सर। अब जब बैटल शुरू हो गई जनाब, फिर क्या हुआ? While fighting Khalid bin Walid attack on Musalman's camp, Musalman retreated to a neighboring garden which was surrounded by a wall. Muslim jumped over the wall, and after that, a huge slaughter took place. And due to this, the battle is also called as the Battle of the Garden of Death. The Garden Even of Battle of Garden of Death. Eventually, Vashi, the Negro slave, killed Musalama. Vashi killed Musalama with same sword that he used to kill Prophet's uncle. Where she said, just as I have killed the most beloved servant of Allah, I am going to compensate for that by killing the enemy of Allah. 3,000 Muslims were martyred, including a large number of Hafaz, Mubarak, and 10,000 Muslims armies were killed. अब हुआ ये कि when they had the war at the place of Yamama, and this time Musalman could not resist. And when he saw that he will get defeated, so he ran away the battlefield and took shelter in one of the garden, which was very having big and thick wall, high and thick wall. And he, you can say, uh, shut himself in that garden. Okay, na? And he was trying to fight against that, but finally Muslims somehow they jumped into the garden, they opened the gate, and because वहाँ पर गार्डन में बाउंड्री वॉल था, उसके अंदर कहीं भाग तो सकते थे, एक ही जगह थे आपको जाने की, या तो दीवार कूद के जाए या फिर वॉल से जाए, तो उस वक्त देयर वाज नो वे टू गो आउट एक्सेप्ट या तो सरेंडर करें या फिर मौत हो जाए.
दैट्स व्हाई देयर वर लॉट्स ऑफ किलिंग हैपेंड ओवर देयर। जैसे आपके सामने आ रहा है कि 3000 तो मुसलमान शहीद हो गए आउट ऑफ 15,000 में से, और 10,000 जो मुसलमान की आर्मी किल हो गई। और आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था कंपैशन ऑफ कुरान मजीद। हमने पढ़ा था कंपैशन कुरान मजीद, वन ऑफ द रीजन ऑफ कंपैशन वाज द बैटल ऑफ यमामा व्हेन अप टू 300 टू 700, एक रिवायत ये आती है कि 300 से लेकर 1200 सहाबा कराम हु वाज हाफिज कुरान सहाबा, they were they were killed in battle of Yamama. That's why Umar he decided to convince Abu Siddiq to compile Quran Majid. अच्छा। आपको याद है ना? जी जी जी, इसलिए वो पूरा कुरान मजीद को कंपाइल किया गया था। हाँ, तो अब ये भी कहा जाता है कि हजरत वैशी, ये हमने अभी टॉपिक पढ़ा नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे इस बार इंशाल्लाह मदनी लाइफ के अंदर। बैटल ऑफ ओहद, बैटल ऑफ ओहद के अंदर हजरत वैशी ही वाज अ ब्लैक नीग्रो स्लेव ऑफ हिंद और हिंदा, तवाइफ ऑफ सुफियान। अच्छा। तो अबू लहब वाज किल्ड, नहीं अबू अबू नहीं, क्या है? अबू सुफियान, अबू सुफियान वाइफ, her father was killed during the battle of Uhud, so she wanted to take revenge. Who killed? Hazrat Hamza, हज़रत हमज़ा, अच्छा ठीक है ठीक। ना? तो she make a deal with वैशी कि वैशी you are expert in spear throwing। हजरत वैशी बहुत एक्सपर्ट थे स्पेयर थ्रोइंग में। स्पीयर थ्रोइंग। हाँ, वो निगरो थे, स्लेव थे, तो उन्होंने डील ये किया कि इफ यू किल हमजा आई विल मेक यू फ्री, मैं तुमको आज़ाद कर दूंगी। अच्छा। तो हजरत वैशी ही वाज अ काफिर दैट टाइम, he took part in battle of Uhud, and during war he did not attack, he did not kill anyone, but he was keep searching Hazrat Hamza। उसने बोला मुझे तो हमजा को मारना है, क्योंकि मैं हमजा को मारूंगा तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। अच्छा। And finally he found Hazrat Hamza and he used his skill of spear throwing and he killed Hazrat Hamza, ठीक है ओह, ना? और अच्छा। फिर हिस्ट्री के अंदर आता है कि हिंदा शी ह्यूमिलेटेड, हज़रत हमज़ा तो प्रॉफिट के अंकल थे ना? अंकल थे। जी। तो शी ह्यूमिलेटेड Hazrat Hamza's body, she cutted his chest and she अच्छा। took out her heart and liver, and she chewed the liver of Hamza, she cutted Hamza's nose and ears, and she made a necklace। उस जमाने के अच्छा। अंदर रिवाज था, हाँ उस जमाने के अंदर रिवाज था, उसको कहते हैं मसाला करना है, कि वो अपने एनिमीज की डेड बॉडी की ह्यूमिलेट करते थे। अच्छा। तो ऐसा सारा किया। तो हजरत मोहसिन ने जब अपने अंकल को देखा उनकी लाश को, तो बड़ा उनको रंजीदा हुआ। फिर एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ मक्का, एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ मक्का, हजरत वैशी ही एक्सेप्टेड इस्लाम। अच्छा ठीक है। जब 8 एज को मक्का फतह हो गया था तो वैशी भाग गया मक्का से, उन्हें पता है अभी तो छोड़ेंगे नहीं मुझे। लेकिन इस्लाम तो माफ करता है ना, जी। होली ने सबको माफ कर दे। तो लोगों ने भाई होली ने माफ कर, तुम भी माफ हो जाए, तुम इस्लाम कबूल कर लो। तो उसने कहा मुझे डर लगता है, मुझे माफ नहीं करेंगे। तो ही हैड अ कन्वर्सेशन विद द प्रॉफिट 3 टाइम्स, इट टुक डेज टू कन्विंस वैशी टू एक्सेप्ट इस्लाम। बार बार वो अपना बंदा भेजते थे, पहाड़ों में छुप गए थे कि भाई अगर मैं ऐसा कर दूं, पर अल्लाह ताला बार बार कुरान के अंदर आयतें नाजिल कर रहे थे। तो जब अल्लाह ने फाइनली कहा कि भाई जब तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम्हारे पिछले सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देंगे, तो फिर जब वो कन्विंस हो गए, फिर वो उन्होंने आके इस्लाम कबूल किया मक्का में, और हज़रत शेख वैसे मुसलमान हो गए, ठीक है ना? ठीक है। इट इज ऑल्सो नरेटेड कि जब वो मुसलमान हो गए तो प्रोफेसर ही कॉल्ड वंस अपॉन टाइम कि वैशी व्हेन यू लिसन टू माय खुतबा, व्हेन यू कम टू मी, व्हेन यू आर इन गैदरिंग, प्लीज स्टैंड एट द बैक, मेरे पीछे खड़ा हुआ करो। ये रिवायत के अंदर आता है। अच्छा ठीक है। तो क्यों खड़ा हुआ करो कि व्हेन आई सी यू इट कम्स माय अंकल डेड बॉडी। अच्छा। तुम तो मुसलमान हो गए, अल्लाह के नेक बंदे बन गए, इतना बड़ा तुमको रुतबा मिल गया, लेकिन फिर भी मैं ह्यूमन हूँ ना। तो जब तुम सामने मेरे ध्यान में वो आया था, तो तुम कभी मेरी बात सुनो तो मेरे पीछे खड़े होकर बात सुना करो। अच्छा। तो ठीक है। तो हजरत वैशी ने सेम स्पेयर से जिससे उन्होंने हजरत हमजा को शहीद किया था, ही यूज्ड द सेम स्पेयर टू किल मुसैलमा, और मुसैलमा को हजरत वैशी ने कत्ल किया। एंड said that I committed a big sin at that time, I killed one of the beloved personality of the Prophet Allah, Hazrat Hamza। Now I killed one of the biggest enemy of Allah, so Allah might compensate me। मेरे जो हम लोग कहते हैं ना यार, ये निकी काम आ गई, वो गुनाह में धुल जाएंगे, तो उस तरह उन्होंने क्लेम किया। तो बताने चाह रहा हूँ कि हाउ हज़रत सिद्दीक़ नो एज अ कैलिफ ही फॉट दोज फॉल्स प्रॉफिट। अगले 10 मार्क क्वेश्चन आएगा, आपने बोर्ड से भी दिखा होगा, तो उसको हमें एक 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 ही पैराग्राफ लिखना पड़ेगा हर कैलिफ फॉल्स प्रॉफिट के बारे में, और ज़्यादा हमें लिखना पड़ेगा मुसलमान कज़ाब के बारे में, क्योंकि इसका अच्छा। इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। अच्छा।
ठीक है। ठीक है। तो मसल में मतलब एक वक़्त के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इस्लाम के अंदर। हाँ, it was a big threat, क्योंकि उसने तो ज़ाहिर बात है क्लेम ही कर दिया था ना, और ज़ाहिर है he passed away, तो उसने कहा जनाब now there is a living prophet which is I am the better than the dead prophet। अच्छा, ठीक है जनाब। ठीक। जी सर। अच्छा, राइट। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं how he dealt with the false prophet. Now we can continue about services towards Islam as caliph, and now other services being a leader of the community was the problem he faced, and he uh, resolved those problems or challenges. प्रॉब्लम फेस। Refusal to pay zakat जी, and apostate movement. ठीक है। Many tribes like Banu Asad, Banu Ghatafan, Banu Abbas, and Banu Murrah accept Islam after the conquest of Makkah. जैसे आपको मैंने बताया कि अनलेस अनटिल किसी की कोई चीज़, देखो इस्लाम के अंदर ये बात होती है कि हम, इस्लाम ये कहता है, फतवा ये कहता है, इस्लाम ये कहता है कि इफ़ वन क्लेम हिमसेल्फ एज अ मुस्लिम, अगर कोई आदमी कहे मैं मुसलमान हूँ, आप उस पर बिलीव करें मुसलमान है, भले से वो काफिर ही क्यों ना हो, अच्छा। भले से मुनाफिक क्यों ना हो, आप बोले हाँ आप मुसलमान हैं, आपने बोल दिया हम मुसलमान आपको मानते हैं, अब वो उसका और अल्लाह का मामला है। वो जी, मुझसे तो कह मुसलमान, लेकिन अंदर से काफिर हो या मुनाफिक हो, अनलेस अनटिल वो कोई ऐसी चीज़ करे जिसकी बेस पर मैं कहे आप मुसलमान नहीं है। बात समझ आ रही है? एक आदमी कहता है मैं मुसलमान हूँ, ठीक ठीक है। है, वो नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है, मुसलमान है। एक आदमी वो कहता है मैं मुसलमान हूँ, वो नमाज भी पढ़ता है, रोज़ भी रखता है, ज़कात नहीं देता, कहता है मैं ज़कात को नहीं मानता, तो अच्छा। वो मुसलमान नहीं है। देखो एक चीज़ होता है नहीं करने का, एक चीज़ होता है कि वी डू नॉट डू एनी एक्ट ऑफ वर्शिप, और सेकेंड है वी डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट एक्ट ऑफ वर्शिप। ये दो अलग अलग गुनाह है। नमाज का ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन नमाज को ना माने कि नमाज है ही नहीं तो काफिर हो जाएगा इंसान। जी, बात समझ आ गई? जी सर। बिकॉज दिस इज अमंग पिलर इस्लाम, declaration, prayer, fasting, paying zakat, and doing pilgrimage is the pillar of Islam. So those tribes who converted Islam at the time of Prophet demise, and Islam was not fully penetrated in their heart and mind. That's why when Prophet ﷺ passed away, they start thinking that we should renew our agreement with the new Khalifa, न्यू खलीफा, ठीक है। and that made them to start denying and not to pay zakat. ठीक Their है। acceptance of Islam was based on diplomacy rather than true faith and firm belief. अब हम ये क्लेम क्यों कर रहे हैं? हमने अभी तो आपको मैंने सिखाया ना कि अगर कोई मुसलमान होता तो उसको काफिर नहीं कहेंगे, जी, कहना भी चाहिए। जैसे बहुत सारे जैसे हज़रत अबू सुफियान के बारे में मशहूर है जनाब, अल्लाह माफ़ करे, लोग कहते हैं उन्होंने मौत के खौफ से इस्लाम कबूल कर लिया, जो गलत है, जी, पक्के मुसलमान थे। और यहाँ पर जनाब ये लिखा है कि उन्होंने इस्लाम से कबूल नहीं किया। इसकी आपकी मैंने वजह बता दी, वजह कि दीज ट्राइब्स दे डिनाइड द पिलर ऑफ इस्लाम, दीज ट्राइब दे डिनाइड द ऑर्डर ऑफ इस्लाम। हज़रत सुफियान ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं? बात समझ रहे बेटा? जी सर। They had taken Islam as a matter of personal allegiance to the Prophet and wanted to renew terms with the Caliph if exempted of zakat. उन्होंने सोचा कि जनाब जो हमने किया है एग्रीमेंट, जब हमने बैच जो की अपने पीर साहब के हाथ में, प्रॉफिट के हाथ में, उस बैच के अंदर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ये भी थी कि जनाब नमाज पढ़ेंगे, ज़कात देंगे, रोज़ा रखेंगे, हज करेंगे, फलाना फलाना। तो दैट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन अस एंड द प्रॉफिट। नाउ द प्रॉफिट नो लॉन्गर अलाइव, a new man came with the Khalifa, so we can make this new agreement. वो ये समझे, and they start asking, sending the messengers to Medina, capital of Islam, demanding Hazrat Siddiq to make a new agreement, and he should exempt them from zakat. They say कि भाई हम मुसलमान हैं, हम सब काम करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, हज करेंगे, हम zakat नहीं देंगे। तो Hazrat Siddiq, he took this as not an exemption, but it was taken as a breach of Islam. आपको मैंने क्या बताया? मैंने बताया ना, एक आदमी ज़कात नहीं दे रहा, ही इज एंटाइटल्ड टू पे ज़कात, जी, उसके ऊपर ज़कात वाजिब फर्ज है, वो ज़कात नहीं दे रहा, गुनहगार होगा, काफिर नहीं होगा। अच्छा, देखिए एक आदमी कहता है मैं ज़कात को मानता ही नहीं, ज़कात क्या चीज़ इस्लाम में मानते ही नहीं, तो वो काफिर हो जाएगा। अच्छा,
और काफिर भी दो तरह के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ये बात याद रखना जो अभी मैंने कहा कि सर आप मुझे बताएं काफिर दो तरह के कैसे होते हैं, ठीक है, अगर मैं भूल जाऊं तो, वैसे तो मेरे ध्यान में आएगा तो बता दूंगा। अब हजरत सिद्दीक ने क्या किया, ही कॉल्ड द मीटिंग ऑफ शूरा टू सीक एडवाइस ऑन इट। हजरत सिद्दीक ने जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए हैं ना, उसके अंदर एक स्टेप ये था कि ही कॉन्स्टिट्यूटेड मस्जिद शूरा एडवाइजरी काउंसिल। अच्छा अच्छा, द प्रॉफिट he used to consult Sabakram. He used to take advice from Sabakram, but he did not constitute any department. He did not make any body. यानी कि in Quran Majid, in Surah Shura, Allah ordered Prophet, and through Prophet he is ordering all of us to take their advice. Allah ने कुरान में कहा कि you should take advice to your followers, companions. अल्लाह ने कहा आप उनसे एडवाइस लें, मशवरा करें। तो मशवरा करना क्या है, सुन्नत है। क्या है ये, सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत है। और ये बड़ा लॉजिकल हम लोग मशवरा करते हैं। Whenever we are having a problem, we ask, we take advice of our parents and friends, भाई मुझे बताओ मैं क्या करूं, है ना। ये बहुत समझे लॉजिकल भी है, नेचुरल चीज़ है। तो जी मशवरा करना सुन्नत है। और अल्लाह ने ऑर्डर भी किया होली प्रॉफिट को क्या मशवरा करें, हालांकि होली प्रॉफिट मशवरे की जरूरत नहीं थी। अच्छा ठीक है क्या ख्याल है, होली प्रॉफिट को मशवरे की जरूरत नहीं थी, वो चाहते तो डायरेक्ट अपना डिसीजन ले सकते थे। ठीक वो एग्जैक्टली चाहते तो डायरेक्ट अल्लाह ताला को गाइड कर, ऐसा कर लो, अल्लाह कहता है ऐसा कर लो, कर देते। लेकिन अल्लाह को सिखाना था मुझे और आपको, ये सुन्नत है। तो होली प्रॉफिट मशवरा करते थे विद सम प्रोमिनेंट कंपेनियंस, बट कोई उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया था कोई बॉडी। आफ्टर प्रॉफिट डिमाइज, द वेरी फर्स्ट टाइम एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप, हज़रत सिद्दीक ही कॉन्स्टिट्यूट अ मस्जिद शूरा। उन्होंने वक्त तक समझो सेनेट या नेशनल असेंबली बना दी, अपनी एक काबीना बना दी कि यहाँ से मशवरा लेते थे। बात समझ आ रही है। ठीक है इसी मस्जिद शूरा को हज़रत उमर ने अपने दौर के अंदर एक्सटेंड किया मस्जिद, बिकॉज हज़रत उमर के दौर के अंदर इस्लाम ही वेंट टू फार अवे प्लेसेस, तो ही एक्सटेंडेड मस्जिद शूरा इन टू कैटेगरीज, मजलिस खास एंड मजलिस आम, लाइक सेनेट एंड नेशनल असेंबली। ठीक है अब ये क्या होगा हम उस वक्त पढ़ेंगे जब कैलिफेट पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैंने बैकग्राउंड दे दिया यहाँ पे। तो व्हेन ही कंसल्टेड विद हिज मजलिस शूरा, मैंने तो लोगों ने एडवाइस किया कि एक ही नॉर्मली स्टार्ट डिस्कस विद देम, वी नीड एन आर्मी, उसामा भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, वी एन डेंजर, हम तब तक घिरे में, तो थोड़ा सा दिन को अटेम्प्ट करें, कुछ इस तरह की मशवरा दिया। तो सीधे अगेन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। जैसे कि आपको याद होगा उसामा बिन जैद के हवाले से उनको भेजा जा रहा था, तो लोगों ने नहीं कहा था ना। मैनी कंपेयर्स टुक एडवाइस नॉट टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम एज मुस्लिम फोर्सेस वर वेरी बिजी ऑन अदर फ्रंट्स। जी ठीक जैसे है उसामा बिन जैद को नहीं भेजे थे, तो उन्होंने कहा जनाब आप इसको खामोशी देखें, आप देखते हैं। वो वाज फर्म ऑन टेकिंग स्ट्रिक्ट एंड प्रॉम्प्ट एक्शन सो दैट अदर्स मे हैव अ लेसन, but without thinking that they are weak in number, they are less in number, they are not strong, he decided to take action against them. He remarked, I swear by Allah, I will fight alone if others do not support me against everybody whosoever refused to give single she goat cake due to him in zakat. देखिए, these are the qualities of Abu Siddiq Anhu. These are the significance of Hazrat Abu Siddiq Anhu as caliph, that he was so much firm in Islamic laws and Islamic actions and rituals, and his action was very important. And he said, divide different आता उन्होंने कहा कि जनाब, if during Prophet lifetime a Muslim was giving a camel, and along with the camel he was giving the string, जिस रस्सी से कैमल को बांधता था वो होली पॉट के दौर के अंदर वो आदमी कैमल भी देता था ज़कात के अंदर और रस्सी भी देता था। अब आज अगर वो सिर्फ कैमल देगा और रस्सी नहीं देगा तो मैं रस्सी के लिए भी लड़ूंगा। He showed his firmness and he was very wise. बिल्कुल सही किया उन्होंने, it was so dangerous, लेकिन ऐसा था अगर वो उसको छोड़ देते फिर क्या होता है, ऐसा लोग कहते भाई हम तो रोजा नहीं क्या करते लोग सारे वीक हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ग्रेजुअली स्लोली दे स्टार्ट प्रैक्टिस इस्लाम। लोग कहते हैं भाई रमजान जून जुलाई में आता है, बहुत गर्मी होती है, फिक्स कर दो दिसंबर में रोजे रखेंगे। क्या कह रहे हैं तो यार हज करना बड़ा मुश्किल होता है भाई, हम हज नहीं कर सकते, उम्र को हज के बराबर कर दो, रोजा तो बहुत मुश्किल है, कम कर दो। तो इस्लाम पूरा चेंज होता है ना, करेक्ट हो जाता है ना। तो इस तरह का नहीं भाई मैं तो फाइट करूंगा,
He really showed he was a true first Khalifa. Tribe decided to leave Islam and planned to attack on Medina in night, but Abu Bakr took them in surprise and defeated them. अब those tribe Banu Asad, Banu Muna, Banu Ghatafan tribe जो भी आपने पीछे पढ़ा, ये tribe they thought कि भाई खलीफा ने तो रिजेक्ट कर दिया हमारे इसके रिक्वेस्ट को, तो they thought that we should attack to Medina and capture and overthrow the king, the Khalifa, and we captured Medina तो सब हो जाएगा. Because Muslim in desperately in need of some army, Hazrat Siddiq, he wait a small group of people and he attacked those people by themselves, by himself. अच्छा ठीक है. ठीक है. Many tribes died, few fled, and many tribes offered their allegiance and start paying zakat. So when he attacked on those tribes, जी बोलिए. सर आज की क्लास थोड़ी क्या जल्दी ख़त्म हो सकती है, इसलिए अभी ना हम लोग निकलेंगे, इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करना No पड़ेगा. problem. हम खत्म अभी कर देते हैं. ये हम जी टॉपिक कल पढ़ लेंगे. जी चलो ठीक है. ठीक है. ये हमारा आखिरी टॉपिक, हम कल पढ़ लेंगे इसको. ठीक है. आपका सेकंड कितना टाइम लगेगा सर ख़त्म करने में? नहीं, अभी तो हमारी क्लास खत्म होने में तकरीबन कितनी टाइम बाकी रह गए? 14 मिनट्स रह गए. 14 मिनट्स. हाँ, चलिए मैं क्लास लेकिन में लेता हूँ. क्योंकि 14 मिनट्स. ये मुझे पता नहीं कब खत्म होगा. ये तो मुझे नहीं पता कब खत्म होगा. ये तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो फिर पता चलेगा. जी जी ठीक है, फिर ये आखिरी वाला करके ही टॉपिक ख़त्म करते हैं. हाँ. अब कौन से रोमन एंड पर्शियंस, देखिए याद रखिएगा, उस जमाने में देवर टू सुपर पावर्स. रोमन्स टुवर्ड्स वेस्टर्न बॉर्डर, टुवर्ड्स वेस्टर्न साइड, एंड दे वर मोस्टली क्रिश्चियन एंड जूइश पीपल. एंड टुवर्ड्स ईस्टर्न बॉर्डर दे वर पर्शियंस, द फायर वर्शिपर्स. जैसे नियर पास्ट के अंदर दो सुपर पावर थी, रशिया एंड अमेरिका, यूएसए एंड यूएसएसआर. ठीक है ना. अब तो एक ही सुपर पावर रह गया देखा जाए तो. तो वो जो ये है ना पावर की डिस्ट्रीब्यूशन, इस वेरी बिगिनिंग शुरू से है कि दो पावर वर्क करती थी. अब रोमन जो थे, मोस्टली दे आर क्रिश्चियन एंड जूइश पीपल, दे वर हैविंग सम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि भाई वी हैड द मैसेंजर्स एंड बुक्स. और पर्शियन थे फायर वो तो उनको था इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स. तो दो सुपर पावर्स जमाने में थी. हज़रत सिद्दीक़ नो ही कुड नॉट एक्सपेंड इस्लामिक स्टेट ड्यू टू रीजन. देखिए जो एक्सपेंशन जो हुई ना एग्जैक्टली वो हुई हज़रत उमर के दौर में. वाई? हज़रत अबू सिद्दीक़ के दौर में नहीं हो पाई क्योंकि फर्स्ट ऑफ द रीजन दैट ही हैज अ वेरी लेस टाइम ऑफ हिज खिलाफत, 2 years और 2 years एंड फ्यू मंथ्स. एक वजह तो ये हो गई. सेकेंडली he was dealing internal challenges. He's encountering internal challenges and problems, and that's why he could not extend Islamic State towards other places. बात समझ में आ गई? जी जी. But he provided a very firm, solid, and strong state to the next Khalifa, Hazrat Umar. You know, that is why Hazrat Umar start spreading Islamic State. बात समझ आ गई? लेकिन इसके बावजूद भी when Hazrat Siddiq, when he, in his very small period of Khilafat, he started spreading Islam towards east and west. कैसे उन्होंने किया? बैकग्राउंड जैसे आपको मैं बताया, दो ट्राइब्स उस वक्त, दो नेशन थी वहाँ पर, ईस्टर्न और वेस्टर्न. आपको मैंने बताया टुवर्ड्स ईस्टर्न बॉर्डर पर्शियंस, फायर वर्शिपर्स, ये दीज टू वर्शिप फायर सन मून. वेस्टर्न बॉर्डर रोमन्स और बैजेंटीन और बैजेंटाइन, क्रिश्चियन एंड जूइश पीपल. ठीक है, ये पावर थी. After suppressing the rebellions of internal tribes and adjoining small state, Abu Bakr turned his attention to the adjoining territories who were doing a lot of damage to Muslims and Islam and were continuously conspiring against Muslims. When Abu Bakr, he finally dealt with all of those problems he faced internally, like who he made to pay, made the tribe to pay zakat, and he eliminated the whole profit. And he countered the apostasy movement जो कर रहे थे, तो उन्होंने अब सोचा मैं करना चाहिए. अब उसके हिसाब से सबसे स्टेप उन्होंने क्या लिया? He went towards Iraq. Khazima was the place where the first battle between the Muslim and Persian took place. Battle of Khazima. Battle of Khazima. It was the first war between Muslim and Iraqi people. Persians were under the command of Hormuz and Khalid bin Walid was the commander of Muslim army. देखिए आपको कुछ नाम याद करने पड़ेंगे. Hormuz, रुस्तम, सोराब, जो ग्रेट कमांडर टुवर्ड्स ईस्टर्न बॉर्डर. अच्छा ठीक है. ठीक है ना. ये जब हम वॉर पे डिस्कस करते हैं तब हम डिस्कस करते हैं. Okay. पर्शियन डिफीटेड एंड राउटेड. लेकिन पर्शियन हाउएवर दे वर द सुपर पावर दैट टाइम, बट दे कुड नॉट स्टैंड एंड दे गॉट डिफीटेड. ठीक है. In order not to run from the battlefield, the Persian soldiers had tied themselves to one another chain. That's why this is also called as Battle of Chain. Battle of Iraq को Battle of Chain भी कहा जाता है.
देखिए वहाँ पे मुख्तलिफ उस ज़माने के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी लोग अपनाते थे वॉर के लिए। एक स्ट्रैटेजी ये भी होती थी कि दे यूज्ड टू ब्रिंग देयर वीमेन एंड चिल्ड्रन विद देम कि अगर हम मर गए तो हमारी औरतें और बच्चे भी जो है ना जान दे देंगे, क्योंकि हम मर गए तो हमारी औरतों को और बच्चों को बचा नहीं सकेगा। हमारे दुश्मन उनकी बेइज्जती करेंगे, उनको रेप करेंगे, मारेंगे, तो हम सब एक साथ मर जाएंगे, या तो हम सब जीत जाएंगे वॉर या फिर मर जाएंगे। ये मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल इमोशनल टेक्निक्स वो लोग यूज करते थे टू मोटिवेट द आर्मी टू फाइट डेस्परेटली। अच्छा तो उसमें एक चेन था कि उन्होंने एक दूसरे से चेन से बांध लिया कि भाई कोई भागेगा नहीं, अच्छा या तो सब के सब मर जाओ या फिर हम सब जीत जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो उनको डिफीट हो गई एंड दे हैड लॉस्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बैटल ऑफ चेन। जो बैटल ऑफ खजीमा हुई इसको बैटल ऑफ चेन इस वजह से कहा जाता है। अच्छा After Battle of Chain, small skirmishes took place at Bazar, Valja, and Ulis. These were the small places where they had the fort. Hira was a famous fort of Persia. पर्शियन में हीरा से हीरा निकला। अभी भी इराक के अंदर बहुत सारे शहर हैं जो उस जमाने के अंदर शहर के जो नेम थे ना वो आज भी हैं इराक ईरान में। अच्छा And Khalid was siege to the city of Hira. Persian resisted in the beginning, but later on the surrender to Muslims and they embraced it. सर I'll be back in a second. जी सॉरी सर, ठीक है ना? ठीक है सर। अच्छा ऐसा करो ना, इसको यहीं पे रोक देते हैं क्लास को। क्या? ये क्लास हम यहीं पे एंड कर देते हैं, बाकी हम इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है, ओके ठीक सर। है, ओके, ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।